جے کے میڈیا نیوز اپڈیٹ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سٹوری ہماری تھوڑی سی لمبی ہوگی، آپ تمام لوگوں نے ضرور یہ سٹوری سننی ہے اور اس کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتانی ہے کہ کیا جو یہ سٹوری بتا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے۔ آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانی ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر نہیں ہے۔ اور ہمارا بھی یہی مدعا ہوتا ہے کہ خاص کر جس بھی آدمی کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے تو ہم اس کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارا مشن یہ ہے، جو ہماری ٹیم ہے اس کا مشن یہ ہے، ہمارے چینل کا مشن یہ ہے کہ جو کرپشن ہے یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ نذیر صاحب ہیں، یہ بات کریں گے کہ ان کے ساتھ پی ایم اے وائی کو لے کر کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے اور کس طرح لوگوں نے ان کو لوٹا ہے۔ نذیر صاحب آپ تو ہمارے وہ سرپنچ صاحب جو کہ وہ آج سرپنچ ہے ہی نہیں ہے، تو ہمیں وہ بولا، میں بمبئی میں کام کر رہا تھا تو بولنے لگا نہیں جی پی ایم آئی کا مکان آیا ہے تو 20,000 روپیہ دے، 15 دے، ایسے کرتا تو پھر بولنے لگا نہیں تیرے بی بی کا بھی الگ کرواؤں گا، وہ پی ایم وائی کا جو ہے وہ بنے گا اور تیرا الگ سے بنے گا، تو 20,000 روپیہ دے۔ تو میرے پاس تھے نہیں پیسے، کیونکہ میں ادھر جاب کرتا تھا، میرے 12,000 روپے مہینے کا ملتا تھا۔ پھر میں نے قرضے سے لیا کچھ آگے پیچھے کر کے، تو 20,000 روپے اکٹھا کر کے اس کو دیا۔ تو پھر بولنے لگا آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، کرتے کرتے 2.5 سال ہو گئے آج۔ تو پھر میں نے جب میں یہاں پہ پہنچا 2 سال کے بعد میں یہاں آیا تو میں نے بولا کہ سرپنچ صاحب آج 2 سال ہو گئے تو میرا کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ایک کا ہوا نہ دوسرے کا ہوا، یہ کیا ریزن کیا ہے؟ بس آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ تو میرے گھر میں 3 kg میٹ لے کے آ، کبھی بولتا ہے تو بیڑی کے 5-6 بنڈل لے آ، کبھی بولتا ہے تو سگریٹ لے کے آ۔ تو میری مجبوری تھی، میں لے کے جاتا رہا۔ تو لاسٹ میں اینڈ یہ نکلا کہ وہ سرپنچ ہی نہیں ہے، وہ سرپنچ دوسرا ہے۔ تو جب ان کے پاس بات پہنچی، بولنے لگا پیسہ کس چیز کا؟ سرپنچ میں ہوں تو پیسہ کسی چیز کا کہیں بھی لگتا ہی نہیں ہے، اگر لگتا بھی ہے تو میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گا۔ کسی کا 100 یا 200 روپے اگر کوئی کسی جگہ لگتا ہے تو وہ بھی میں نے آج تک کسی سے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے جس آدمی نے آپ سے پیسے لیے، ایک تو آپ اس کا نام بتائیے، اور وہ سرپنچ تھے ہی نہیں، انہوں نے سرپنچ کا نام بھیج کر آپ کو یہ بولا کہ میں سرپنچ ہوں، ہاں، تو آپ سے پیسے لیے۔ ان کا نام کیا تھا جنہوں نے پیسے لیے؟ اس کا نام مختار ہے، کیونکہ اس کے دادا جی اور پاپا جی تو وہ پہلے ان کے پاس سرپنچی تھی، نمبردار چوکیدار وہ تھے، تو سرکرتا تھے گاؤں کے، وہ کام بھی کرتے تھے۔ اور آج یہ ہے کہ وہ ان سے سب کچھ چھین لیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مختار اس کا نام ہے۔ تو اس نے ایسے میرے کو بولا تو یہ کر وہ کر، تیرے آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ جب میرے کو سرپنچ صاحب دوسرے جو وہ ملے، انہوں نے میرے کو بےعزتی کی، بولا تو انسان ہے، گدھا ہے، کیا چیز کیا ہے کہ تو پیسے کس چیز کے دے رہا ہے؟ تو پیسے واپس لے لے تو تیرا کام میں کروا دوں گا۔ پھر میں جا کے جو سیکرٹری یہاں پہ ان کو ملا، میڈم جی کو ملا، بولنے لگی کوئی پیسہ نہیں ہے، تو ڈاکومنٹ پہ بھیج، آج کل میں جیو ٹیک ہو جائے گا، تو پیسہ جس کو دیا ہے اس کو تو سامنے کر، اور پیسہ تیرا واپس ہونا چاہیے۔ آپ نے کتنا پیسہ دیا اور کب دیا یہ پیسہ؟ 2 سال 2.5 سال ہو گئے آج 2.5 سال ہو گئے، میں نے 20,000 روپیہ دیا ہے۔ آپ نے بیچ میں ان سے کوئی پیسہ مانگا؟ کچھ ریکارڈنگ بھی آپ نے ہمیں بھیجی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی ہم نے سنی۔ آپ نے بیچ میں ان سے کبھی پیسہ مانگنے کی کوشش کی؟ ان کی طرف سے کیا کہنا تھا آپ کو؟ میں نے پیسہ مانگا ان کو، بولتے ہیں نہیں تیرے لڑکے کا نام طارق ہے، تیرے لڑکے کا نام عارف ہے، تیرے لڑکے کا یہ ہے نام، تو جو بھی کچھ بھی ہوگا وہ پہلے فارمیشن ہمارے پاس آئے گی، وہ جواب ہم نے دینا ہے، اتنے کام آپ کو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے بولا وہ بات الگ کی، اگر کوئی نمبرداری کا حق ہے، نمبردار ہیں آپ۔ اچھا، آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ نمبردار ہے، اور ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا نام بتا رہے ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کل کو کوئی تصدیق یا کچھ آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی؟ ہاں، وہ ہمارے پاس آئے گے، ہم نہیں کریں گے۔ اور ایسا بھی میرے کو سننے میں آیا کہ بول رہے ہیں کہ تیرے بھائی کے ساتھ تیرا جھگڑا ہے، تو تیری زمین کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے، وہ سب ہم نے کرنا ہے، اگر تو نہیں ایسے کرے گا تو ساری زمین تیرے بھائی کے نام کر دیں گے، تو جا کے تیرے کو یہاں پہ آنے کا حق نہیں رکھیں گے ہم، ایسے بول رہا ہے وہ۔ آپ نے ویڈیو منڈی سے بھی اس بارے میں بات کی، جو وہاں کے سیکرٹری ہیں اس سے بھی بات کی کہ آپ سے پیسے لیے ہیں، محکمے کا نام بھیج کر اس بندے نے پیسے لیے ہیں؟ ہاں، اس کو بھی میں نے سرپنچ صاحب، سیکرٹری صاحب بولنے لگے تو نے کس کو پیسے دیے؟ میں نے بولا یہ سامنے ہی ہے، ان کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس، پورا پروف ہے 2-2.5 سال کا۔ میرے کو آج کل بولتے رہے، ابھی آج بول رہے نہیں تیرا ایسے نام ہے، ایسے نام ہے، یہ لڑکے کا نام ہے، تو جو جہاں بھی جائے گا تصدیق آئے گی، میں کوئی نہیں کروں گا تو تیرے کو گاؤں سے نکال دوں گا، ایسے ویسے دھمکیاں دے رہا ہے مجھے آج۔ تو پھر میں پریشان ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے تو
20,000 क्या 20 रुपये भी जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। आज 25 साल हो गए मेरे को किराए पे यहाँ रहते हुए, मेरे को मकान नहीं मिला। तो मैं अगर उसको बोलता हूँ सरपंच साहब आपके पास ये फंड आती हैं, यहाँ ये होता है वो होता है, बोलेगा हाँ मिल जाएगा ना, तू इतना पैसा दे, तू आ जा ना मेरे घर, तो 3 kg मीट लेके आ, कभी बोलता है बीड़ी के बंडल 4-5 लेके आ, कभी बोलता है सिगरेट लेके आ। मैं बेचारा किसी बच्चों को या किसी से या बीबी से किसी से मांग के भी अगर लेके जाऊँगा 100-200 की सिगरेट लेके उसको दूंगा, मगर वो कुछ फ़ायदा नहीं मेरे को मिला। अच्छा, ये चीज़ें उन मुख्तार की तरफ से कहनी थी कि आप कभी आपको बोलते हैं बीड़ी लेके आओ, कभी आपको बोलते हैं सिगरेट लेके आओ, कभी आपको बोलते हैं मीट लेके आओ। हाँ, मुख्तार साहब खुद बोलते हैं मेरे को कि तू मेरे घर पे आ, तो जब मंडी पहुंचेगा मेरे को फ़ोन करना। मैं पुंछ से जाता था, मैं मंडी पहुंचता हूँ, हाँ सरपंच साहब क्या बोल रहे हैं, हाँ वो इधर मीट वाली दुकान है ना, तो उधर जाके 3 kg मीट ले ले, कभी बोलता है सिगरेट ले ले, तो तू मेरे घर पे अब तेरे को मैं पैसा दूंगा। किसने पैसा दिया या किसने कुछ भी नहीं दिया मेरे को। ऐसे करते करते मैं बेचारा बहुत लॉस हो गया। मैं टोटल पैसे आपने कितने उसको दिए हैं, कैश से दिए हैं या अकाउंट वगैरह से दिए हैं? नहीं, कैश दिया है मैंने, 20,000 रुपया उसको कैश दिया है। तो 2-3 बार मीट लेके गया और सिगरेट बीड़ी लेके गया। और जैसे आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी एज ए प्रूफ हैं जिसमें वो खुद एक्सेप्ट करता है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं, आपकी फाइल मैंने यहाँ से जम्मू भेज दी है। तो मैं भी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि PMAY की वो कौन सी फाइल है कुछ जो जम्मू से अप्रूवल होकर आती है, उस आदमी ने आपको कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग भी भेजी है जिसमें ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने पैसे लिए हैं। हाँ, वो खुद बोल रहा है ना, उसने खुद भी बोला, सरपंच साहब को बोला हाँ मैंने 20,000 रुपया से लिया है, इसका काम मैं करवाऊंगा, आज करवाऊंगा, कल करूंगा, इसके साथ आपने कोई बात ही नहीं करनी है, उनसे भी नहीं करने दिया। हालांकि आपने उसको उन्होंने ये बोला जिस टाइम आपको कि आपके 2 नाम आएंगे, आपका भी और आपकी मिसेज का भी, आपका राशन कार्ड एक ही है? एक ही है। हम भी डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इससे पहले जो PMAY की स्कीम थी वो एज पर राशन कार्ड पे आ रही थी, क्योंकि जिस बंदे का राशन कार्ड है उसी को जो है PMAY की स्कीम का जो है वो फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन देखिए उस आदमी ने इनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, और इनके घर में अगर एक राशन कार्ड है तो इनसे 2 बंदों के पैसे लिए, इनके भी और इनके घर वाली के भी, और ये बोला कि आप हमें 20,000 रुपया दो, हम आपको जो है वो PMAY देंगे। पिछले 2.5 साल से इनका ये कहना है कि हमने उनको पैसे भी दे दिए, हमें जो है PMAY भी अभी तक नहीं मिला है। और आपके भाई ने भी कुछ उनको दिया? हाँ, 15,000 रुपया उसने भी दिया है, और मेरा भतीजा है 10,000 उसने उससे लिया है, और 20,000 रुपया मेरे से लिया है। तो लगभग ये कुल रकम मिलाकर 50,000 के करीब बनती है। हाँ, इतना पैसा लिया है। बोला नहीं थे उसको, भतीजे को बोला तेरे चाचा ने भी दिया, उसका काम हो जाएगा, तेरा रह जाएगा। फिर उससे भी 10,000 रुपया लिया इकबाल से। और मेरा भाई छोटा है शबीर, बोला तेरे भाई ने दिया, उसका काम हो जाएगा, तेरा रह जाएगा। उससे भी 15,000 रुपया, पहले 10 लिया फिर 5 लिया, ऐसे लेके तो हुआ एक का भी नहीं, ना उसका हुआ ना इसका हुआ। बस ऐसे धमकियां देते हैं। मेरे भाई को बोलते हैं, मेरे भाई को बोलेंगे तेरे को नज़ीर ने ये बोल दिया, तो मेरे को बोलेंगे तेरे को भाई ने ये बोल दिया। आपस में झगड़ा करवा के फिर दूसरे दिन फ़ोन करते हैं, तू 5,000 रुपया दे दे, तेरा फैसला हो जाएगा। उसको बोलते हैं अलग से, तू 5,000 रुपया दे दे, तेरा फैसला हो जाएगा। ऐसे लोगों का झगड़ा करवा के तो 5,000 रुपया लेके तो ये ऐसे कर रहे हैं। मेरा तो 20,000 रुपया नकदी कैश लिया है, जिसका सरपंच साहब के आगे भी उन्होंने बोल दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी 2-2.5 साल की। आजकल करते करते मेरे को बहुत परेशान करके। आप इंतजामिया से जनाब डिप्टी कमिश्नर से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा पैसा जो है वो वापस आना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सेक्रेटरी साहब ऐसे हैं, उन्होंने बोला कि पिछले साल जब तूने बोला था तब तेरी फाइल आई थी, मगर वो पैसा मुख्तार ने लिया था। बोला कि वो उसका नाम, तो वो बोलने लगा कि ये मेरा काम है, मेरे आदमी है और मैं लूँगा। मेरे को ये क्लियर नहीं है मेरे पास कि उसने ले लिया है, मेरा नाम बेच के ले लिया है या नहीं लिया है। आपका ये कहने का है कि आपका PMAY का घर भी आ गया, आपकी जो किस्त है वो भी वो ले गया कहीं? सब कुछ लेके गया, जैसे कहने के हिसाब से वो ले गया है, और मेरे को तो एक पैसा भी नहीं दिया उसने। अब आप इंतजामिया से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, वीडियो मंडी से खासकर, और जितने भी पंचायत के RDD के सीनियर ऑफिसर हैं उनसे और डिप्टी कमिश्नर से? हम यही गुजारिश करते हैं कि हम गरीब इंसान हैं, हमारा इंसाफ जो है वो वापस दिया जाए। अगर उसने लिया है पैसा क्लियर हो जाएगा कि अगर लिया है तो हमें मिलना चाहिए। तो हम बहुत गरीब इंसान हैं, 25 साल से रेंट पे रह रहे हैं। आपने उनको फ़ोन वगैरह किया इन दिनों में, पैसे मांगने की कोशिश की? क्या जवाब था उनका? मैंने किया फ़ोन उसको कि सरपंच साहब वो पैसे जो है मैं काम खुद करवा लूँगा। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरी भी जान पहचान है थोड़ी बहुत, क्योंकि 25 साल से मैं शहर में रहता हूँ। तो मैडम साहब जो उनको मैं मिल चुका हूँ, उनको मैंने डॉक्यूमेंट भी भेज दिया है। तो
बोले लगा नहीं नहीं उनको क्यों भेज रहा है, मैं खुद करवाऊंगा, मैं अभी आज करवाऊंगा, मैं कल करवाऊंगा, साइड ये है वो है, ऐसे करके बोलता है एयरटेल साइड जो वो बंद थी, अभी जियो टैक है, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है, वो मुझे मालूम भी नहीं है। तो ऐसे करके तो वो आजकल कर रहा है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरा पैसा वापस कर दे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं खुद करवा लूँगा। फिर बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तू ऐसे करूँगा तेरे को वैसे करूँगा, ऐसे धमकी दे रहा है। मैं क्या परेशान हो गया हूँ, मैं क्या आपने कोई पुलिस स्टेशन या एसएसपी के पास या मंडी एसएचओ के पास कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अभी तक? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया अभी, वीडियो ऑफिस में किसी जगह? किसी को कुछ नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब आप आगे क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम वीडियो के पास भी जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे, जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे, क्योंकि मेरा हक है। मैंने गरीब इंसान ने मजदूरी करके, देखो जी 250 या 300 रुपया में दिन रात को खड़ा रह के, मैं एक वॉचमैन था वहाँ पे, तो खड़ा रह के मैंने कमाया बच्चों के लिए, मैंने खो के उसको उनको दिया कि चलो यार मेरा काम हो जाएगा, तो काम भी नहीं हुआ और उल्टा आज धमकियाँ मिल रही हैं मेरे को। आपको ये धमकियां दे रहे हैं कि वो शायद नंबरदार हैं या चौकीदार हैं, जो आपने नाम बताया मुख्तार, कि आपके बच्चों की कोई वेरिफिकेशन या कोई भी चीज़ आएगी हम वो नहीं करेंगे अगर आप हमसे पैसे मांगोगे। हाँ, बोला उसने पैसे जो है तेरे लड़कों का, तेरा कोई भी काम होगा वो नहीं होगा, ज़मीन से भी तेरे को घर से निकाल देंगे, क्योंकि भाई तेरा वो उसके साथ बनती नहीं है, हम वो हमारे। ये जो मुख्तार हैं ये नंबरदार हैं या चौकीदार हैं? वो मेरे ख्याल में लंबरदार हैं, तो एक और लड़का चौकीदार है, वो एक ही है, बस ऐसे करते हैं, धमकियां दे रहे हैं मुझे। तो तेरा ये अगर तू खुद भी करवाएगा तेरा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि तुम हमसे अगर ऐसा करेंगे हम होने भी नहीं देंगे, ऐसी धमकियां दे रहे हैं वो। नाजरीन आपने सुना, ये हैं नज़ीर अहमद जी जो बाइला के रहने वाले। इनके साथ देखो PMAY के नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। एक वहाँ के चौकीदार या नंबरदार हैं जो मुख्तार अहमद है, उनका नाम है, उन्होंने इनसे पैसे लिए कि आपको जो है PMAY स्कीम के तहत आज से 2.5 साल पहले कि आपको 2 घर मिलेंगे। एक इनकी मिसिज़ का नाम लिया और एक इनका नाम लिया। हालांकि उस टाइम एज़ फॉर राशन कार्ड एक ही जिस बंदे का राशन कार्ड है उसी के नाम PMAY की जो स्कीम है वो सेंक्शन होती थी। अब हम भी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने इस तरह की स्कीमें बनाई हैं, आपने इस तरह के अगर ऑफिस खोले हैं जहाँ वीडियो ऑफिस आपके बैठते हैं, या पुलिस स्टेशन अगर हैं तो वहाँ पे SHO हजरात बैठे हैं या SSP हजरात हैं, हम भी उनसे ये गुजारिश करते हैं कि खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आप इस तरह के लोगों को नंबरदार और चौकीदार बनाओगे जो आपका नाम या आपके दफ्तरों का नाम भेजकर लोगों से पैसे लेते हैं, और खासकर इस गरीब आदमी से आपने देखा कि इनका कहना है कि मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से पैसे लेकर, मैंने बम्बई में काम करके जो है उनको 20,000 रुपया एक दिया, 15,000 इनके भाई ने दिया, 10,000 इनका भांजा है कोई उसने दिया, लगभग 50,000 के करीब इनकी जो है वो रकम बनती है। लेकिन उस आदमी से ये पैसे मांग रहे हैं आज, तो आज वो आदमी इनको धमकी दे रहा है कि आपके बच्चों के हमारे पास कोई वेरिफिकेशन या कोई भी चीज़ आएगी हम उसको नहीं करेंगे। इसकी तरफ इंतजामिया जो है वो तवज्जो ले, और हम देखने वाले जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं हम भी उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि ये इस तरह के लोगों के साथ जहाँ जहाँ भी जिस जगह भी इनजस्टिस होता है, जहाँ जहाँ भी खासकर हमारा मुद्दा ये है, हमारी जितनी भी टीम के 10 लोग हैं अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए, हमारा यही मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर से और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हम इस करप्शन को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ भी किसी जगह अगर करप्शन का कोई इस तरह का मुद्दा है, किसी से कोई डिपार्टमेंट पैसे लेता है या कोई आदमी, कोई सरपंच या कोई नंबरदार चौकीदार किसी काम करने के पैसे मांगता है आपसे, तो आप हमारे साथ जो है वो संबंध कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको जो है वो मिल जाएगा, आप हमें फ़ोन करके बुला सकते हैं किसी जगह भी, हम आपकी फरियाद आकर ज़रूर सुनेंगे। हमारा काम यही है। हम भी एक बार फिर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं और SHO मंडी से ये गुजारिश करते हैं, SSP पुंछ से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो नज़ीर अहमद का जो कहना था, इनके कहने के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इनसे PMAY के नाम पे पैसे लिए वो पैसे इनको उनसे वापस करवा कर दिए।